गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, और ये जो पोर्शन है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में अब स्टूडेंट्स हम लोगों का एक नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है, एंड दिस इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करने से पहले एक पॉइंट है जिसको मैं रिकॉल कर लेता हूँ, एंड दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में इसको स्टडी किया है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ defined as the space around a charge in which another charge experiences a force of attraction or repulsion। मीन्स क्या है कि ये अगर सपोज आपके पास में ये एक चार्ज है, तो इस चार्ज के चारों तरफ ये जो स्पेस है, दैट स्पेस it is known as electric field, because in this space if we place another charge, then this charge will experience a force of attraction or repulsion, or you can say the electrostatic force, right students? So we know the concept of this electric field. Now the electric field of a charge at a point can be described by two parameters। एक चार्ज है, उस चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हम अंदर कोई पॉइंट को हम कंसीडर करें, तो देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय टू पैरामीटर्स, राइट। One is electric field itself, or you can say the intensity of electric field, and this electric field or intensity of electric field, it is a vector quantity। ये vector quantity है represented by capital E vector, इसको हम E vector से हम represent करते हैं। Now that point, it can also be described by another physical quantity which is known as electric potential। This electric potential, it is a scalar quantity and it is represented by V। इसको हम V से हम represent करते हैं, right students? तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि सपोज आपके पास में एक चार्ज है, ये सपोज एक चार्ज है कोई भी, और ये चार्ज है, तो इस चार्ज के चारों तरफ क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दिस इज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। नो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इसके किसी भी पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें, सपोज वी कंसीडर दिस पॉइंट, so this point can be described by two parameters। Number one is electric field, right, and this electric field, it is represented by E and it is a vector quantity। Now this point can also be described by another quantity, and this is electric potential, right। And this electric potential, it is a scalar quantity and represented by this V। So students, you can see that the electric field and the electric potential are the two characteristic parameters
of a point in the electric field of a given charge, right? This electric field and the electric potential are the two characteristic parameters of any point, suppose this point, of any point in the electric field of a given charge, right students? तो हम लोगों को यहाँ पर कंसंट्रेट करना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट स्टूडेंट्स? तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे। तो चैप्टर का जो हमारा नेम है वो है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Okay students, now in physics we study about a term potential difference or electric potential difference. Now in this electric potential difference, if the potential of one point is 0, then this is termed as electric potential. So students, first of all I would like to discuss the potential difference. What is potential difference, right? So here the first term is potential difference. What is potential difference? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हम सबसे पहले इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट स्टूडेंट्स? तो प्लीज आप लोग यहाँ बोर्ड पर कंसंट्रेट करें। नाउ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए गिवन चार्ज, this potential difference, it is defined as the amount of work done in moving a test charge, in moving a unit positive test charge from one point to another point. मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि अगर आपके पास में एक चार्ज दे रखा है और उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम स्टडी करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो जो दो पॉइंट्स हैं आपके पास जिनके बीच में आप चार्ज को मूव कराते हैं, तो उन पॉइंट्स के बीच में चार्ज को मूव कराने में हमें जो वर्क करना पड़ता है, that work is known as the potential difference. Suppose आप यहाँ कंसीडर कीजिए कि ये एक चार्ज है, Q चार्ज है, और इस चार्ज की चारों तरफ क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके चारों तरफ क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको मैंने यहाँ डॉटेड लाइन के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? दिस इज, यू कैन से, this is your source charge which is producing this electric field, and this is its electric field. Now in this electric field if we consider 2 points, अगर हम यहाँ पर 2 points को consider करते हैं, let us consider this one point here and another point is here. So this is V, suppose this is A and this is B, right? So if A and B are the 2 points in the electric field of this source charge, then if we move a unit positive test charge
from, suppose this is a unit positive test charge from point B to point A, then the potential difference between these 2 points is defined as VA minus VB. This is equal to W VA. हम चार्ज को कहाँ, जो आपके पास में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको कहाँ से कहाँ तक मूव करा रहे हैं, B से A की तरफ मूव करा रहे हैं अपॉन Q नॉट, वेयर Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज. तो हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं. सपोज हमारे पास टेस्ट चार्ज जो है वो Q नॉट टेस्ट चार्ज है और हम इसको इस डायरेक्शन में हम मूव करा रहे हैं. तो हम B से उसको A तक लेकर के आ रहे हैं. तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज डिफाइंड एज द potential difference between these 2 points and it is represented by VA minus BB, right students? So here this is the potential difference between 2 points in the electric field of this source charge. Now the unit of this potential difference is, from here you can say the unit of potential difference is, ये क्या होगी आपके पास में, WVA वर्क है ये आपके पास में. तो वर्क की यूनिट आपके पास में क्या होती है, दिस इज जूल, और नीचे है चार्ज, राइट. तो चार्ज क्या है, जूल पर कूलम, और दिस इज ऑल्सो नोन एज वोल्ट, राइट, और वोल्ट, इसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट. दिस इज नोन एज वोल्ट, राइट. तो ये आपके पास में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए गिवन सोर्स चार्ज, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय VA minus BB is equal to WVA upon Q naught. Its unit is volt. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इस पर बेस्ड आपको बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी मिल जाते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन you can solve all such type of questions, right students? Now from the definition of this potential difference you can determine the dimensional formula for this potential difference. Now the dimensional formula for the potential difference will be, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो वर्क है, तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला आप यहाँ लिख सकते हैं. दिस इज ML2T-2, right, and the dimensional formula of this charge Q is 80. So its dimensional formula for the potential difference will be ML raised to the power 2, T raised to the power minus 3 and A raised to the power minus 1. राइट स्टूडेंट्स, तो हमें इन पॉइंट्स को याद रखना है. इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, दिस इज ML रेज टू द पावर 2, T रेज टू द पावर minus 3 एंड A रेज टू द पावर minus 1. राइट स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा. दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ स्टूडेंट्स, फ्रॉम हेयर we can define this. what is 1 volt? 1 volt क्या होगा आपके पास में. सपोज ये जो आपको यहाँ दे रखा है 1 volt को अगर हमें डिफाइन करना है तो दिस इज 1 volt इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो VA माइनस VB, दिस इज इक्वल टू
W VA upon Q naught. Now if WVA is equal to 1 joule and Q naught is equal to 1 coulomb, then 1 volt, this is equal to joule per coulomb, 1 joule per coulomb. So this is the definition of 1 volt. Right students, so you can define the potential difference of 1 volt is equal to 1 joule of work when a charge of 1 coulomb is moved from one point to another point. Means a potential difference, अगर 1 volt का potential difference है between 2 points, then it is defined as the 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from one point to another point. Right students, तो ये भी आप एक definition याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है कि define 1 volt, so आप यहाँ से इसकी definition जो है वो students आप दे सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स, नाउ इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. राइट नाउ अभी तक हमने क्या किया था, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने स्टडी किया था, लेकिन अब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नाउ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन अभी आपने यहाँ पर देखा था वो क्या था कि W जो आपके पास में VA माइनस VV इज इक्वल टू कितना है आपके पास में, दिस इज इक्वल टू W VA अपॉन Q नॉट. राइट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in the electric field of a given charge. Now if here, if this point B is at infinity, अगर ये infinity पर है, right, then B at B is equal to कितना होगा आपके पास में 0. infinity पर पोटेंशियल क्या होगा 0. then this is VA minus 0 is equal to क्या होगा W. मीन्स B की जगह आपके पास में क्या है infinity, तो infinity A upon Q नॉट. राइट, तो फ्रॉम दिस VA means potential at point A, it is defined as W infinity to A upon Q naught. Right, so from this expression you can define what is electric potential. This electric potential at a point is defined as the amount of work done in moving a charge from infinity to a point in the electric field of a given charge. Right, एक हमारे पास में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक मूव कराकर लेकर आते हैं, तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा दैट वर्क इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. लाइक पोटेंशियल डिफरेंस, द यूनिट ऑफ दिस electric potential is joule per coulomb, which is also known as volt, and in the same way you can derive the expression for the dimensional formula for this electric potential. Right students, तो आप इस चीज को यहाँ पर बड़े आराम से आप इसको समझ सकते हैं. Right, so student, this is electric potential. Now students, coming to the next point, here we will discuss about the electric potential at a point due to a point charge. Right, your heading is electric potential at a point due to a point charge.
पॉइंट चार्ज। सपोज आपके पास में एक पॉइंट चार्ज दे रखा है, ये एक पॉइंट चार्ज है आपके पास में सपोज Q, और इस पॉइंट चार्ज से हमें एक डिस्टेंस है R डिस्टेंस है, यहाँ पर इस R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पर हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसके लिए हमें एक्सप्रेशन डिटरमाइन करना है कि ये एक्सप्रेशन क्या होगा, हमें यहाँ निकालना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं, प्लीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। हमने यहाँ अज्यूम कर लिया है, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट O। इस पॉइंट O पर रखा हुआ है। नाउ दिस पॉइंट चार्ज, दिस विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दिस चार्ज Q। ये इस चार्ज के चारों तरफ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो प्रोड्यूस करेगा, राइट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, किसी पॉइंट पर हमने एक पॉइंट चार्ज जो है वो हमने अज्यूम कर लिया, Q0 को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया कि भाई एक पॉइंट चार्ज जो है वो इस पॉइंट पर यहाँ पर प्लेस्ड है। तो जब ये पॉइंट चार्ज पर यहाँ पर प्लेस्ड है, तब आप स्टूडेंट्स देखिए, इफ वी मूव दिस पॉइंट चार्ज Q0 right towards this point O by a small distance dr, अगर हम इस पॉइंट चार्ज Q0 को हम dr डिस्प्लेसमेंट देते हैं towards this point charge, then the work done means यहाँ पर work done in moving the test charge Q0, right, here work done in moving the test charge Q0 by displacement dr towards charge Q will be, ये कितना होगा, अगर हमें इसको हम इसकी तरफ मूव करा रहे हैं, सपोज हमने इसको dr जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो इसको हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है इतना, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, सपोज स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। दिस वर्क विल बी dw इज इक्वल टू कितना होगा, this work is equal to, according to the definition of this work is equal to force into displacement, right, dr vector। now students आप यहाँ पर देखिए, इस पर्टिकुलर केस में अगर ये टेस्ट चार्ज है, राइट, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और ये चार्ज है आपके पास में पॉजिटिव Q, और अगर हम इस टेस्ट चार्ज को वी आर मूविंग टुवर्ड्स द चार्ज Q, then work has to be done against the electrostatic force। इस पर जो एक इस चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो उसके अगेंस्ट आपको एक वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो dw होगा that will be equal to F dr cos 180 डिग्री, राइट स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि जो फोर्स है इस पर, आप देखिए यहाँ जो फोर्स लगेगा वो इस पर किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मींस इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री का है। सो dw इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डी आर, राइट स्टूडेंट्स। नाउ if we move this test charge from infinity to this point P, then the work done here, the work done in moving the test charge Q naught from infinity to
a point P at a distance small r is, अगर मैं इसको इस पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है वहां तक अगर मैं इसको मूव कराता हूँ तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, W विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ दिस dW, राइट। हम कहाँ से कहाँ तक मूव करा रहे हैं, इसको इन्फिनिटी से हम यहाँ मूव करा रहे हैं इस पॉइंट तक, मीन एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, राइट। सो दिस इज इन्फिनिटी टू स्मॉल r। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज रख देते हैं, तो W इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी टू स्मॉल r एंड dW इज इक्वल टू कितना है, माइनस ऑफ FDR, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, this force F acting between this test charge Q naught and this source charge F is, where F is equal to कितना होगा आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन, राइट। इसके बीच में अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस ले लेते हैं R स्क्वायर, तो ये हमने एक एवरेज डिस्टेंस ले ली, तो हमारे पास में ये हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास में अगर आप इसको रखोगे तो W इज इक्वल टू, आप यहाँ से देख सकते हो कि W की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स आपके पास में, here this W is equal to integral from infinity to R of minus F की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और इंटू DR, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। W इज इक्वल टू आपके पास में क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बाहर ले लेते हैं, मीन्स माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, राइट, सॉरी Q नॉट एंड दिस इज इंफिनिटी टू R 1/R स्क्वायर DR, राइट स्टूडेंट्स। मीन्स W इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस विल बिकम R रेज टू द पावर -2 DR इंफिनिटी टू R। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो W इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इंटीग्रल, दिस इज R रेज टू द पावर -1/-1, राइट, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल r। नाउ फाइनली इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो W इज इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इक्वल टू -1/r एंड लिमिट्स इंफिनिटी टू r। नाउ W इज इक्वल टू आपके पास में कितना हो गया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस टर्म विल बिकम -1/r एंड -1 इंफिनिटी, मीन्स W इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r, राइट। तो ये जो है आपके पास में जो Q नॉट, ये टर्म्स और आएंगे आपके पास में, यहाँ पर Q नॉट ये टर्म्स आपने यहाँ और लिख दिए, राइट। तो ये जो आपके पास में है कितना इसको वर्क करना पड़ेगा वो आपके पास में यहाँ आ गया, दिस इज Q नॉट, दिस इज the work done in moving the test charge from infinity to a point P, right students। now according to the definition of potential, V is equal to कितना होता है, W upon Q naught, so V is equal to कितना होगा, तो जब आप ये वैल्यूज रखेंगे W की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, this will be equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q upon R, right students। So this is the expression for the electric potential at a point due to a point charge, means V is equal to क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q upon R। तो स्टूडेंट्स इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन को हम हमेशा याद रखेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी आती हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, वो इन पर बेस्ड हैं, आप उनको ईजिली जो है वो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस. थैंक यू वेरी मच.